Hello everyone. Today's topic accounting ratio. Today we are talking about accounting ratio. What is ratio here? Meaning of ratio: relationship between two figures expressed in arithmetical terms is called ratio. In the words of R.N. Anthony. What is ratio according to this? A ratio is simply one number expressed in term of another. It is found by dividing one number into the other. It means when we find the ratio, then we divide a number by the other number. We find ratio. Okay. It can be expressed as simple ratio, percentage ratio and rate ratio. Now see, first simple ratio. If it is said find ratio between two persons height. One person's height is 160 centimeter and other person height is 150 centimeter. We have to find ratio in both. 16:15. This is simple ratio. Okay. Now what is percentage ratio? If it is said how much percentage of 50,000 एज 5,000 जो वैल्यू है वो 50,000 में कितने परसेंट है? ठीक है. नाउ हाउ कैन बी फाइंड हियर? 5,000 इन 50,000 इनटू 100. 0 0 कैंसिल. 10%. 5,000 is 10% of 50,000. Okay student, now see next rate ratio. अब rate ratio कैसे निकालेंगे यहां पर? This ratio is find by to dividing a bigger number by a smaller number. For example, we take two number. A bigger number is 50,000 and a smaller number is 5,000. 10 times. We write this 10 times. This type we write. Okay. Simple ratio, percentage ratio, rate ratio. Now we see next. Some other ratio is given here. Now see classification of ratio. First ratio is profitability ratio or income ratio. Second is activity or turnover ratio. Third is solvency ratio and fourth is liquidity ratio. Now first we talking about here profitability ratio or income ratio. You see this first. Number one is gross profit ratio. Gross profit ratio. How we find it? Gross profit upon sales into 100. Okay. Other formula is here. 100 minus cost of sales into 100 upon sales. Okay. 100 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 100 अपॉन सेल्स. ऐसा भी निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो.
And now how can we find a gross profit? Gross profit. See this. Gross profit equal sales minus cost of production. Sales minus cost of production. Okay. Now, how can you find your cost of production? Cost of production. How can you find here? Opening stock plus purchase plus purchase productive expenses plus productive expenses less purchase return if any less closing stock. Okay, why that way we can't find it? Next one is operating ratio. Next ratio is operating now. See how can we find this? See it carefully. Cost of sales plus operating expenses upon sales into 100. Now listen this. This word is written cost of sales and upon sales is written. We can write it in other words. You see that. We can write it in other words. Cost of revenue from operations plus operating expenses upon net revenue from operation. Net revenue from operation. अगर डिग्री लेवल पर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल इनटू 100. इंटर लेवल पर आपको फॉर्मूला कौन सा मिलेगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. ये बुक्स में लिखा हुआ है इस तरीके से. लिखे तो दोनों हैं, अदर राइटर्स की बुक्स में अदर तरीके से लिखा गया है. किसको? ऑपरेटिंग रेशो को. Okay, so never confuse about this formula. You can write anyway. Now see, what is operating expenses? See, operating expenses. Now first, office and administrative expenses.
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन expenses. Third one, financial expenses. सारे एक्सपेंसेस इन्हीं तीनों में आ गए. ओके, ठीक. If we find her expenses ratio, if we find her expenses ratio in that condition, what you will do? If we find expenses ratio for this, ये जो रेशो है ना, all three expenses, if we find expenses ratio, that will be calculate on sale. You see first, expenses ratio office and administrative expenses upon sales into 100. इस तरीके से आपको निकालना है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस into 100 upon sales, financial expenses into 100 upon sales. If it is said to find the expenses ratio. Now next ratio is operating ratio, operating profit ratio. Okay, see next, operating profit ratio. How can we find here? Net operating profit upon sales into 100. Okay, sales, for this word we use here revenue from operations. We can write here for this word, or net operating profit upon net revenue from operations into 100. This type you can write. Okay, now see, you can find this other way. अलग तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 100, एक फॉर्मूला ही है, और 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशो. ओके, नेक्स्ट अदर वे, 100 माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100. यहां पे हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह? रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सेल्स की जगह नेट रेवेन्यू. ओके, दिस वे यू कैन फाइंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो. नाउ वी टॉकिंग हियर. नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट रेशो. अब नेट प्रॉफिट रेशो कैसे निकालोगे? सी दिस, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट प्रॉफिट अपॉन
revenue from operations. Revenue from operations means sale. New from operations, बीच ब्रैकेट में लिख दी जाती है सेल्स. ओके, anyone you can write any word into 100. Now see, what is net profit here? How can we find a net profit? Net profit how can we find? कैसे find करेंगे net profit? Now see, net profit equal gross profit minus indirect expenses and losses. Indirect expenses and losses and टैक्स भी लेस कर दो और ऐड क्या करनी, इफ एनी अदर इनकम. ओके, अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या शामिल किया जाएगा? व्हाट विल बी इंक्लूड दिस? क्या इंक्लूड होगा यहां पे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. What we will include here? Office expenses plus selling expenses. Office expenses. Office expenses mean that is related to office. All expenses here consist. Selling expenses. Selling expenses means that is all expenses related to sales. And interest on long-term borrowings. Interest on long term borrowings. Borrowings means loans. Borrowings and accidental losses. These include indirect expenses and losses. Okay student, now see next. ROR यानी रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्सेस. अब हमारा जो नेक्स्ट होगा फॉर्मूला डेट इज रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्सेस. अब ये देखो इसमें सी दिस, फोर हो गया. रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्सेस. इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? व्हाट फॉर्मूला वी विल यूज हियर? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स. टोटल assets into 100. When you will do the question, why that way you can understand easily. क्वेश्चंस करोगे जब तो ये सब ऑलरेडी माइंड में फिट हो जाएंगे बिल्कुल. ओके, नेक्स्ट वन इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. अब देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे अब यहाँ अगर फॉर्मूला क्वेश्चन आए तो. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. How can you find this? Profit before interest and tax into 100 upon capital employed.
इंटू 100। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। सेम डेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब शेयर होल्डर्स की बात आती है ना, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट जब भी मिलता है व्हेन बी पेड ऑल एक्सपेंसेस, ओके, एनी टाइप एक्सपेंस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100। ओके, नाउ सी व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर आइए, कैसे फाइंड करोगे, हाउ विल कैलकुलेट हियर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसके लिए एक फॉर्मूला यहां पर दिया गया है, पहले ये समझ लो इसको। सी कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत ध्यान से देखना। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होती है, इक्वल टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स इक्वल टोटल रिसोर्सेस। ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, रिसोर्सेस। अब कैसे फाइंड करनी है हमें, कोई भी एनी वर्ड, ठीक, कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल प्लस रिजर्व हो जाएगा आपको, एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्या लेस होगा इसमें, माइनस करेंट लायबिलिटीज, माइनस करेंट लायबिलिटीज। ये माइनस कर दोगे ना करेंट लायबिलिटीज, तो आपकी ये निकल के आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड और टोटल रिसोर्सेस, और ये किसके इक्वल होती है, टोटल एसेट्स के इक्वल होती है। ओके, नाउ अदर वे कैसे फाइंड करेंगे हम, अगर हमें टोटल एसेट्स दी गई होगी और करेंट लायबिलिटीज दी गई हो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करोगे, सी दिस, कैपिटल एम्प्लॉयड फर्स्ट वे, टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ओके, ये आपको बहुत ध्यान से देखनी है फॉर्मूले व्हेन यू विल गो डिग्री कोर्सेस, इफ यू डू एनी कॉमर्स लाइन, BCom, BBA, you will see there these formulae. If you understand at this time, that time it will be easy to solve the question for you. Okay, now फर्स्ट वे तो ये हो गया, टोटल एसेट्स में से हमने करेंट लायबिलिटीज माइनस कर दी तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगी। नेक्स्ट अदर वे क्या है हमारा, फिक्स्ड एसेट्स, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होंगी प्लस वर्किंग कैपिटल। सेकंड वे क्या है, ये तो फर्स्ट वे था, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब देखो वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड की जाती है, वर्किंग कैपिटल हम यहां कैसे फाइंड करेंगे, सीधे वर्किंग कैपिटल फाइंड करने का फॉर्मूला है आपका
एसेट्स, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट अदर वे भी है यहां पर फाइंड करने का, नेटवर्थ प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। थर्ड वे क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने का, नेटवर्थ प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ओके, अब ये देखो यहां पर व्हाट इज नेटवर्थ हेयर। अब नेटवर्थ क्या होती है आपकी यहां पे, व्हाट इज नेटवर्थ। अब देखो नेटवर्थ क्या होगी, क्या क्या शामिल करेंगे हम नेटवर्थ में, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड surplus. Okay, now see next, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स नेटवर्थ। अगर ये निकालना हो हमें तो कैसे निकालेंगे, शेयर होल्डर्स नेटवर्थ, क्या होगी नेटवर्थ यहां पे, सी इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी और कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। एक तो ये तरीका है अगर ये दी गई हो तो, ठीक, इफ ओनली दीज गिवन देन यू फाइंड नेटवर्थ, ऐसे फाइंड कर लेना, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारी नेटवर्थ निकल आएगी। इफ दीज आर गिवन इन द क्वेश्चंस, अदर वे क्या है, टोटल लायबिलिटीज माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ओके, एक अदर वे और है यहां पे, यू कैन फाइंड टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ओके, नाउ सी नेक्स्ट, these are all profitability ratio. Okay, some remain here, you see that. अर्निंग पर शेयर, नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर, इट्स मीन्स ईपीएस। कैसे फाइंड करेंगे ईपीएस, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रीफरेंस डिविडेंड, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रीफरेंस डिविडेंड भी आ रही है। अपॉन
अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, अब देखो नेक्स्ट आपका डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालेंगे? पर शेयर डीपीएस, डीपीएस निकालना है तो डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, PER, इसको हम ऐसे भी कह देते हैं PE रेशो, PE रेशो कैसे निकालेंगे? मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। ओके स्टूडेंट, नाउ अर्निंग यील्ड रेशो, नेक्स्ट इज अर्निंग यील्ड रेशो। इसको हम कैसे कह सकते हैं? EY रेशो, EY रेशो।